Good evening, all of you. Good evening. How are you all? Fine. Okay, so today we will start new lesson. Page number 134, lesson number 7, plant growth and mineral nutrition. Okay, so first we will understand what is the meaning of our topic. Plant growth. What does mean by plant growth? Plant growth होना. Mineral nutrition. What is minerals? Okay, minerals खत. Okay, nutrition. Yes, पोषक द्रव्य we call it. No, you doesn't understand what does mean nutrition, पोषक द्रव्य. Like vitamin, protein, vitamin. These are the nutrition in our body. Okay. So 7.1 plant growth. So understand, growth is one of the characteristic feature of living organism. Every living organism will be grown. Okay, as next there is a two aspect. One quantitative and another one is a Qualitative. Okay, so first we have to understand what is the difference between quantitative and qualitative. So quantitative means amount, how much it is, and qualitative means what is the quality. Okay, like we purchase anything, so we look at quality. It is good, it is bad. Okay, so you understand, quantity means amount, quality means good or bad. Quality it is. Got it? Okay. So next, quantitative aspects speak increase the length. Quantity means length, breadth, size, and volume. Okay. And growth as a quantitative changes final end product and successive metabolism. Next is a qualitative. Qualitative means what? Development. Nature of a growth. Development. Okay. So next, while differentiation leads to higher and more complex trait. Differentiation. Differentiation means different. Okay. Growth thus defined as a permanent growth. What is the growth? Scale of growth. ओके कोई भी प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है? पहले सेल की ग्रोथ होंगी. ओके तो सेल की ग्रोथ में यहाँ पे क्या बोला है? डिफाइन एज अ परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज. एक बार प्लांट की ग्रोथ हो गई, क्या उसको मतलब कट कर सकते? छोटा हो सकता है प्लांट, हमारी हाइट ग्रोथ हो गई, कम हो सकती है? नो, इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मीन्स okay, very good. Bulk of organism, change form. So we next paragraph. In multicellular means okay. Growth is a indeterminate. What does mean by indeterminate? Indeterminate means डिटरमाइन नहीं कर सकते. ठीक है, कोई प्लांट की ग्रोथ कितनी होगी क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं? एग्जैक्ट नहीं कर सकते. किसकी हाइट कितनी होगी, कितनी बढ़ सकती है, क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो कुछ प्लांट्स एकदम बढ़ते हैं जो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. गॉट इट? ठीक है. फिर क्या बोला है? एंड ऑकर्स थ्रू आउट द लाइफ इनडिफाइनेटली. इनडिफाइनेटली मतलब डिफाइन नहीं कर सकते. इनडिफाइनेटली ग्रोथ. ओके. इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सम स्पेसिफिक रीजन. कुछ स्पेसिफिक रीजन में रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको बोला जाता है मेरिस्टेम. मतलब कि हाँ ठीक है, बोल दिया कि सेल की ग्रोथ होती है, पर एक टाइम बाद वो सेल की ग्रोथ रुक जाएंगी ना. हाँ, सेल की ग्रोथ क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी. फिर वो सेल क्या होना? मैच्योर हो गई. गॉट इट? तो जब वो सेल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब रुक जाना, ग्रोथ रुक जाएगा, सेल की ग्रोथ रुक जाएंगी और फिर वो मैच्योर होना स्टार्ट होंगे, उसको मेरिस्टेम बोला है. गॉट इट? ओके. Which are the region where the new cells are constantly and continuously produced. New cells constantly क्या होते हैं? Produce होते हैं. ठीक है, हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं. क्या होता है रेड ब्लड सेल्स? पढ़ाया हमने. इससे क्या होता है? रेड ब्लड सेल से क्या बनता है? सेल की ग्रोथ होती है. रेड ब्लड सेल से क्या होता है? क्या बनता है बॉडी में? वेरी गुड, ब्लड बनता है. ओके, यू आंसर विद कॉन्फिडेंट. हाँ, मेरिस्टम आर द 3 टाइप्स ऑफ लोकेशन. तो मेरिस्टम क्या बोला मैंने? सेल. मेरिस्टम सेल है. ठीक है, जो सेल क्या हो गए? ग्रोथ होना स्टॉप हो गई है और क्या हो गया अभी? मैच्योर. ठीक है, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस. एपिकल रूट टॉप, ओके, लेटरल ब्रांचेस लेफ्ट राइट एंड इंटरकैलियर लोअर सेल. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस phases of growth. Next one. Any doubt till now? No doubt. Okay. So there is a 3 phase. First one is a phase of a cell division. Anyone? Cell division means what? ओके, सेल फॉर्म होना, दैट्स कॉल्ड द सेल डिवीजन. एक से दो सेल डिवाइड होना. सेल्स आर मेरिस्टेम और थीन वॉल. सो सेल मतलब क्या है? मेरिस्टेम. कैसी वॉल है? थीन. ओके. नॉन वोकैलिटेड
हैविंग द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है, ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है, ग्रैन्युलर छोटे छोटे साइटोप्लाज्म्स। ओके, मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगोज द मिटोटिक डिवीजन। क्या होता है मिटोटिक डिवीजन? 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। ओके, ये सब हो रहा है, मेरी मिटोटिक डिवीजन हो रहा है। क्या होता है इससे? टू फॉर्म अ न्यू सेल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, वन सेल रिमेन मेरिस्टेमेटिक एंड अदर सेल्स अंडरगो इनलार्जमेंट। ठीक है, अभी समझना है हमें कि एक सेल है, ठीक है, इस सेल का नाम दिया मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, अभी इससे क्या होगे? 2 सेल्स फॉर्म होंगे। मिटोटिक डिवीजन समझते हो? अभी मिटोटिक डिवीजन में क्या होगा? एक सेल फॉर्म होगा और एक सेल फॉर्म होगा। अभी ये जो एक सेल है, ये सेल का क्या होगा? ये रूट, फ्रूट, शूट कहीं पे भी यूज होगा। ठीक है, अभी ये जो सेल होगा ये फिर से डिवीजन फॉर्म करेंगे 2। समझा? तो ऐसी प्रोसेस चलती जाएगी। ठीक है, ऐसे 2 सेल फॉर्म होंगे, इसका भी कंटिन्यू चलते जाएगा, फिर से 2 सेल फॉर्म होंगे, फिर से 2 सेल में से एक सेल जो रहेगा वो क्या होगा? जो यूज होगा प्लांट में ग्रोथ के लिए, और एक जो होगा वो डिवीजन के लिए यूज होगा। समझा तुमको ये क्या बोला? और इस प्रकार क्या होगा? न्यू सेल्स फॉर्म होती रहेगी। गॉट इट? ठीक है, तो हम लोग थे वन सेल रिमेन द मेरिस्टेमेटिक। तो ये जो वन सेल है ये यहाँ पे रुक गया, इसका डिवीजन हुआ क्या? नहीं, तो इसका डिवीजन नहीं हुआ, यूज हुआ है प्लांट में, तो इसको मेरिस्टेमेटिक बोला है। इसको क्या नाम दिया है? सेल रिमेन द मेरिस्टेमेटिक, ये है वो। ठीक है, एंड द अदर सेल, और ये जो अदर सेल है इसमें क्या हुआ? इनलार्जमेंट, बड़े हुए ये सेल। एंड डिफरेंशिएशन डिवाइड हुए। ओके, डिफरेंट हुए। इन दिस फेज द रेट ऑफ ग्रोथ स्लो फेज। स्लो मतलब कैसे होगी? ग्रोथ स्लो होगी, जिसको क्या बोला? लैग फेज। लैग मतलब स्लोली ग्रोथ होना। गॉट इट? ठीक है, तो हमने पढ़ा अभी फेज ऑफ अ सेल डिवीजन। तो क्या समझा तुमको फेज ऑफ सेल डिवीजन में? बस यही कि एक सेल है, एक सेल से 2 सेल फॉर्म होंगे, एक उसमें से 2 सेल में से एक जो सेल है वो मेरिस्टेमेटिक सेल बोलेंगे। मेरिस्टेमेटिक मतलब जो प्लांट में यूज होगा, जिसकी ग्रोथ रुक जाएंगी, और दूसरा जो सेल रहेगा वो डिवीजन होगा। ठीक है, ये पढ़ा हमने। समझा क्या? ये रेट मतलब स्पीड क्या रहेंगी? स्लो। हाँ, नेक्स्ट बी पॉइंट पढ़ो आर्यन। फेज ऑफ सेल इनलार्जमेंट, इलोंगेशन। कोई बताएगा इनलार्जमेंट मींस? बढ़ना। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इलोंगेशन, इलोंगेट, स्ट्रेच होना। ओके, क्या सेल की ग्रोथ होंगी तो क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ होगी। गॉट इट? ओके, The newly formed cell becomes vacuolates, osmotically active and turgid due to absorption of water. ओके, न्यूली फॉर्म सेल बिकम्स। अब ये जो न्यूली फॉर्म हुए सेल्स है, ओके, बिकम्स द वोकैल्यूटेड। वोकैल्यूटेड मतलब न्यूक्लियस है, वोकुलेट। ठीक है, ऑस्मोटिकली एक्टिव है, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह पढ़ा है। ओके, एक्टिव है, टर्जिड है, टर्जिड भी पढ़ा है। क्या था? ओके, water will be absorbed by cell due to absorption of water. Turgidity result in the enlargement of cell. Turgid हो जाएंगे तो enlargement of cell. Okay, both lengthwise and breadthwise. Breadthwise means okay. In this phase, new wall materials and other materials are synthesized to cope up with the enlargement. तो क्या होगा? enlarge हो जाएंगे सेल। The growth rate कैसी होंगी? एक्सपोनेंशियल मतलब एकदम से क्या हो जाएंगी? ग्रोथ वेरी गुड, बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आंसर, थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा जोर से होना चाहिए। आंसर इतना धीरे क्यों आ रहा है? सी पॉइंट, फेज ऑफ अ सेल मैच्योरेशन। कोई बताएगा सेल मैच्योरेशन मतलब? सेल की जो डिवीजन है वो रुक गया अभी। ठीक है, जो भी कोई बच्चा बनता है तो पहले क्या होता है? सेल के डिवीजन होते हैं, मिटोटिक डिवीजन, फिर एक टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद सेल क्या होता है? मैच्योर होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। ठीक है, सेल का डिवीजन स्टॉप हो गया, अभी सेल क्या होंगे? हाँ, डिफरेंशिएशन में देखो क्या बोला है? द इनलार्ज सेल बिकम्स द स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन एंड अटेन्स द मैच्योरिटी बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली। मॉर्फोलॉजिकली मींस स्ट्रक्चर वाइज, फिजियोलॉजिकली मतलब अंदर से फिजिकल जो चेंजेस होंगे बॉडी में सेल में। इन दिस फेज रेट, तो ये फेज कैसे होगा? स्लो होगा। ठीक है, परिपक्वता मराठी में बोल सकेंगे हम लोग। जब कोई भी फूल से, जो फ्लावर से क्या फॉर्म होता है? फ्रूट। ठीक है, फ्रूट फॉर्म होगा, तो फ्रूट फुल्ली फॉर्म हो जाएगा। तो जब फ्रूट फुल्ली फॉर्म होगा तो कब होगा? जब मैच्योर होगा सेल, जब मैच्योर होगा तब वो फल अच्छे से परिपक्व हो जाएगा, पक जाएगा। गॉट इट? सेल मैच्योरेशन। ठीक है, तो ये प्रोसीजर कैसी है? स्टेशनरी। कोई भी एकदम फट से हो जाता है क्या? पक जाता है क्या कोई भी फल? नहीं, स्टेशनरी मतलब कॉन्स्टेंट, थोड़ा स्लो ही रहता है बट स्टेशनरी। गॉट इट? यू कैन लुक एट द 7.1 पिक्चर।
ए एंड बी, क्या डिफरेंस दिख रहा है ए और बी में? लीफ जो है वो स्मॉल है, सेट है, बी में वो मैच्योर हो गया, फॉर्म हो गया। ओके, तो ए और बी में तो क्लियर है, थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन है कि एक में साइज छोटा है, दूसरे में इलॉन्गेशन हो गया, सेल ग्रोथ हो गई, ठीक है। डायग्राम में देखो, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन, नीचे सेल फॉर्म हो रहे हैं, फिर इलॉन्गेशन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फिर क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गए सेल, फिर क्या होगी सेल मैच्योर हो गई, और मैच्योर होके कड़ी वगैरह फॉर्म हो गई, कोम वगैरह जो भी है, समझा क्या? ओके, 7.3 कंडीशन फॉर ग्रोथ, द डिफरेंट इन्वायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अभी उसने बोला कंडीशन फॉर ग्रोथ, किसकी ग्रोथ की बात हो रही है? वेरी गुड, प्लांट की ग्रोथ की बात हो रही है। तो कुछ कंडीशन लगेंगी, अपना दिमाग लगाओ, क्या कंडीशन लगेंगी प्लांट की ग्रोथ के लिए? वेरी गुड, इतनी चीजें नीड है हमारी। ओके, तो वही तो लिखा है, देखो, वाटर सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स लगेंगे, टेम्परेचर लगेगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइट, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सारी चीजें लगेंगी, बराबर है। नेक्स्ट, वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट। वाटर क्या है? एसेंशियल, एसेंशियल, हाँ, ठीक है। मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल, क्या मेंटेन करना है? टर्जिडिटी मेंटेन करनी है, वाटर प्रेशर मेंटेन करना है, वाटर चाहिए मेंटेन करना है, ठीक है। फिर ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ओके। टेम्परेचर अच्छा होना, कितना 25 से 35 होना चाहिए। ऑक्सीजन इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, खुद का खाना खुद बनाते हैं ना प्लांट्स, उनको क्या लगेगा? उनको भी ऑक्सीजन लगेगा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए उनको क्या लगेगा? ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है। लाइट तो पता ही है तुमको, जर्मिनेशन ऑफ सीड, जब तक सनलाइट नहीं मिलती है कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है प्लांट। फ्लावरिंग मीन्स समझा ना, वो ऐसे फुल नहीं होता है, कड़ी रहेगी, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट 7.4 ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ, किसकी ग्रोथ की बात हो रही है? तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, इट इज द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ग्रोथ कैसी होती है? पर यूनिट टाइम, टाइम के साथ क्या होंगी? प्लांट की ग्रोथ होगी। इट इज ऑल्सो द इफिशिएंसी इंडेक्स, उसी को बोला है। रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी मेजर इंक्रीज इन द साइज। ओके, प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा, ओके। क्या क्या है ऑर्गन्स प्लांट के? हाँ, ये सब क्या होंगे? इन सब की भी ग्रोथ होगी, हाँ। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ चेंज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, तो जो टाइम के साथ प्लांट की ग्रोथ होती है उसको नाम दिया है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 135 पे आओ, वहाँ पे कुछ मेथड्स बताया है। देखो, डायरेक्ट मीटर, हॉरिजॉन्टल माइक्रोस्कोप, ऑक्सीमीटर, दिखा तुमको ये मीटर, तो कोई भी मीटर यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें मेजरमेंट करना है प्लांट का, कि प्लांट की ग्रोथ कितनी हुई, टाइम के साथ कितना प्लांट की ग्रोथ हुई। थर्मोमीटर यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वैसे यहाँ पे ये मेजरमेंट करना है प्लांट की ग्रोथ कितने टाइम के साथ कितने होती है ये पता करने के लिए, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है। गॉट इट? नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 136। AGR में डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ रिलेटिव ग्रोथ। तो रिलेटिव ग्रोथ मतलब बोला टोटल नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द मीडियम, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं, कितनी ग्रोथ हुई। मतलब रिलेटिव ग्रोथ रेट मतलब होता है कि एक एक मिनट में कितना ग्रोथ हो रहा है, हर एक दिन में कितना ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। एकदम कम मतलब एकदम टाइम टू टाइम देखना है तो उसको बोला है रिलेटिव ग्रोथ रेट। और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब कि हमें एकदम टाइम टू टाइम नहीं दिखना है, ओवरऑल एवरेज देखना है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, लिखा भी है वहाँ पे। RGR refers to the growth of particular system per unit time। तो RGR जो है वो बताता है particular system ratio of the growth। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, अभी हम देखेंगे कितने टाइप्स की ग्रोथ है। फर्स्ट है अरिथमेटिक ग्रोथ। तो अरिथमेटिक ग्रोथ में, अरिथमेटिक किसी को पता है अरिथमेटिक क्या होता है? अरिथमेटिक मतलब एक स्टेप वाइज ग्रोथ हो रही है, 2 4 6, ओके, अरिथमेटिक। तो तुमको क्या देखना है सबसे पहले, वहाँ पे लिखा भी है, देखो, रेट ऑफ द ग्रोथ कांस्टेंट, कांस्टेंट होती है ग्रोथ, कांस्टेंट मतलब हाँ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो रही है, 2 का टेबल, ठीक है, 2 4 6 8, मतलब स्टेप वाइज हो रही है, ऐसा नहीं एकदम इतना था फिर एकदम इतना हो गया फिर एकदम, ऐसा नहीं हो रहा है, स्टेप वाइज कॉन्स्टेंटली, व्हाट इट, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझा क्या ये ग्रोथ क्या है? नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर द मिटोसिस, मिटोसिस स्टेप वाइज ग्रोथ होना, वन ऑफ द डॉटर सेल, हमको पता है ये क्या हमारे डॉटर सेल, जो नए सेल न्यू फॉर्म होते हैं सेल उनको क्या बोला है? डॉटर सेल। कंटिन्यू टू डिवाइड, ये फिर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, कंटिन्यू, ओके। तो यहाँ पे ये तो यूज हो गया था, अभी इसका फिर से डिवीजन हो जाएगा और इसका क्या फॉर्म हो जाएगा? ये प्लांट में यूज होगा सेल, ठीक है, फ्रूट में, फ्लावर में, कहीं पे भी यूज होगा, ठीक है। इसको मेरिस्टेमेटिक सेल बोलेंगे, इसको डॉटर सेल बोलेंगे। फिर क्या बोला है? आफ्टर मिटोसिस, मिटोसिस समझा ना आपको? वन ऑफ द डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड, तो ये डिवाइड कंटिन्यू चलेगा, ओके।
फिर क्या बोला है, अदर सेल टेक्स अ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। तो दूसरा सेल क्या होगा, ये मैच्योर होगा, ये प्लांट में मैच्योर होगा और ये डिवीजन होता रहेगा। इलोंगेशन ऑफ द रूट एट अ कांस्टेंट रेट। इलोंगेशन मतलब रूट्स का क्या होगा, इलोंगेशन होगा। रूट्स इलोंगेशन होता है, नहीं होता है, ठीक है। जितना जितना प्लांट्स बड़ा होते जाता है उतने उसके रूट्स गहरे हो जाते हैं नीचे डीपली, बराबर। लीनियर कर्व होगा, लीनियर कर्व समझते हो, हाँ। तो नीचे कुछ टर्म्स बताए हैं, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, ओके। नेक्स्ट जियोमेट्रिक ग्रोथ। जियोमेट्रिक ग्रोथ में देखो क्या बोला है, सेल डिवाइड्स द मेथोडिकली इनटू टू, ठीक है। सेल कैसे डिवाइड होंगे, दो पार्ट में डिवाइड होंगे। हियर द बोथ द डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड रीडिवाइड। डॉटर सेल फिर से डिवाइड होंगे, ये देखो एक का डिवीजन हुआ, फिर से डिवीजन हुआ, इस सेल का फिर से इधर होगा तो रीडिवाइड, ऐसे रीडिवाइड होते जाएंगे। सच अ ग्रोथ इज जियोमेट्रिक ग्रोथ। ऐसे ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक। मतलब कि अरिथमेटिक मतलब क्या, स्टेप वाइज ग्रोथ होना, ठीक है। और जियोमेट्रिक मतलब क्या, एकदम डबल हो जाना, ठीक है, समझते हो। तो एकदम डबल हो जाना मतलब जियोमेट्रिक, एकदम स्टेप वाइज नहीं होगा इसमें। हाँ देखो पिक्चर से तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। देखो पहले क्या था, अरिथमेटिक में एक सेल दिखा, फिर एक से क्या हो गए, दो, हाँ, फिर दो से तीन, तो बराबर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। जियोमेट्रिक में क्या हुआ, एकदम डबल हो रहा है, एक का दो, दो का चार हो गया, तो एकदम बढ़ रहा है। पिक्चर एकदम क्लियर है, डिफरेंस समझ गया लीनियर और अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक में क्या डिफरेंस था, ओके। सी में देखो ज़ाइगोट डिवाइड। अभी ज़ाइगोट डिवाइड मतलब वो सेल है, अभी यहाँ पे ज़ाइगोट मतलब कौन, सेल। तो अभी सेल दो पार्ट्स में डिवाइड था, फिर चार पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ओके। फिर लास्ट स्टेज में क्या हुआ, सेल वो मैच्योर हुआ है, डिवीजन स्टॉप हो जाएगा एक टाइम बाद और फिर सेल क्या होंगे, मैच्योर। नेक्स्ट पेज 137, ग्रोथ रेट कंपैरिजन। क्या कंपेयर करेंगे, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ, ओके वेरी गुड, ठीक है। अभी एक लीफ है और छोटा और एक दूसरा लीफ है, दिखा के तुमने, ठीक है। तो एक में छोटा क्या था 5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद कितना बदला वो 10 सेंटीमीटर, समझा इतना, ओके। दूसरे इसमें क्या है, एक था 50 और एक था 55। तो तुमको ग्रोथ रेट पहले में ज्यादा दिख रही है कि दूसरे में ज्यादा दिख रही है, दूसरे में, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से देखो, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए और बी में क्या बोला है, एक छोटा था और एकदम देखो कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। और एक बी था, पहले कितना बड़ा था और फिर वो कितना बड़ा हुआ है। और अभी बताओ कि कौन सा ज्यादा बड़ा है, मतलब ए, क्यों ए, वो एकदम छोटा था, वो एकदम बड़ा हुआ है, ठीक है। दो कलर के अलग अलग शेड बताए हुए, ठीक है। एक हल्का शेड है और एक डार्क शेड है। तो हल्का शेड मतलब बताया कि वो पहला इतना था और फिर वो बाद में इतना बड़ा हुआ है, 5 to 10 हुआ है। तो ए में क्या हुआ, ज्यादा ग्रोथ हुई है एज कम्पेयर टू बी। बी में वो पहले ही बड़ा था और हल्का सा उसमें क्या हुआ है, ग्रो हुआ है, समझा क्या, ठीक है। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, डायग्राम के ऊपर देखो, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। हाँ, तो टाइम के साथ जो ग्रोथ मेजर करेंगे उसको क्या बोला है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, ओके। और रिलेटिव में क्या बोला है, ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन द कॉमन बेसिक इनिशियल पैरामीटर। इनिशियल पैरामीटर पहले पैरामीटर गिनेंगे, पहले के हिसाब से डिसाइड करेंगे और उस पर बोला है रिलेटिव ग्रोथ रेट। क्या तुमको एब्सोल्यूट और रिलेटिव का डिफरेंस समझा, ठीक है। टाइम तो दोनों में मैटर करता है, बस एब्सोल्यूट में बोला है कि मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे पहले कितना था और बाद में कितना था, ठीक है। रिलेटिव में बोला है कि हम एकदम टाइम टू टाइम, मतलब कि एक एक सेकंड में, ठीक है, थोड़े थोड़े आवर्स में कितना चेंज हुआ है, कितना ग्रो हुआ है, बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। अभी आएंगे ग्रोथ कर्व पे, आ जाओ आगे सब लोग, ठीक है। इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, वेरी गुड, ऑफ द टोटल ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम, ठीक है। अगेंस्ट टाइम क्यों, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे ग्रोथ हो रही है, ओके। देयर आर द 3 टाइप्स। तो 3 कौन से हैं, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, सिग्मोइड। हमने 2 अभी पढ़े हैं, कौन से 2 पढ़े हैं, एक लीनियर पढ़ा और दूसरा एक्सपोनेंशियल। कोई बताएगा लीनियर मतलब क्या देखा था हमने, स्लो, और एक्सपोनेंशियल में हमने देखा था फास्ट, गुड। अरिथमेटिक ग्रोथ कर्व इज अ लीनियर। अरिथमेटिक कैसा था, लीनियर। लीनियर क्यों बोला अरिथमेटिक को, हाँ। और एक्सपोनेंशियल को जियोमेट्रिक क्यों बोला, डबल डबल बढ़ रहा था, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, करस्पॉन्डिंग द 3 डिस्टिंक्ट फेज। अभी हम लोग तीसरा भी पढ़ने वाले जिसका नाम है सिग्मोइड कर्व, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, लैग फेज। लैग मतलब फेज मतलब स्लोली, वेरी गुड, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लॉग फेज मतलब फास्ट, हाँ, ग्रो फास्ट होना। स्टेशनरी फेज मतलब
हाँ कांस्टेंट हो जाना, एक बार सेल डिवाइड हो रहे फिर रुक जाना एकदम, ठीक है, तो क्या होगा, स्लो डाउन, रेट क्या हो गया, ग्रोथ रेट क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया, स्टेशनरी जब मैचुरेशन फेज आता है। फिर ग्राफ रेट ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम इज अ प्लॉटेड 3 फेजेस, तो ये सब हमने प्लॉट किए, प्लॉटेड मतलब ग्राफ निकाले हैं, प्लॉट किए हैं। पिक्चर पे आओ, पहला है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में देखो एकदम वो ऐसा बढ़ गया, समझा। सेकंड में देखो सिग्मॉइड में कैसा है, वो कांस्टेंट थोड़ा सा बताया है, ठीक है ना, ऐसा मतलब कि थोड़ा हल्का बढ़ रहा है, एकदम नहीं बढ़ रहा। और एक्सपोनेंशियल में क्या था, एकदम बढ़ रहा था, बराबर। फिर आएंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। कोई मुझे डिफरेंशिएशन का मीनिंग बताएगा? डिफरेंशिएशन वेरी गुड, डिवीजन, क्या डिवाइड हो गया यहाँ पे, सेल डिवाइड हो गया। हाँ डिफरेंशिएशन में देखो क्या बोला है, इट इज अ मैचुरेशन सेल, सेल क्या हो गए, मैच्योर, तभी डिवाइड होगा। फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मैंने बताया था, किसी को याद है, टॉप ऑफ द पार्ट, रूट का, जो प्लांट का रूट टिप रहती है, टिप मतलब ऊपर का हिस्सा, उसको एपिकल पार्ट, एपिकल मेरिस्टम, समझा। तो एपिकल मेरिस्टम ऑफ द रूट एंड शूट, परमानेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ लीडिंग टू द मैच्योरेशन। तो जो भी सेल क्या हो गए हैं, फंक्शन करना काम करते हैं, फंक्शन, कोई भी सेल फंक्शन कम करता, जब डिवीजन हो गया है, जब वो मैच्योर होना स्टार्ट हो रहा है, तब वो फंक्शन करेगा मैच्योर होने के बाद, ठीक है। तो तब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन अंडरलाइन किया, और डिफरेंशिएशन को इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार बता रही हूँ, डिफरेंशिएशन क्या होता है, परमानेंट चेंज इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या होगा, परमानेंट चेंज, फंक्शन ऑफ अ सेल लीडिंग टू द मैच्योरेशन, फंक्शन, सेल फंक्शन करना, फंक्शन मतलब हाँ, हर एक सेल का अलग काम होता है ना, तो वो काम करना शुरू करेगा, उसको डिफरेंशिएशन बोला। ड्यूरिंग द सेल डिफरेंशिएशन, जब सेल डिवाइड होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, सेल अंडरगोज अ फ्यू द मेजर एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरली फिजिकली क्या होंगे, चेंजेस होंगे सेल, ठीक है। एग्जांपल दिया है पैरेन्काइमा सेल, ओके। नेक्स्ट डी डिफरेंशिएशन, अभी हम समझेंगे डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, हमने क्या किया, सेल को डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएशन होने के बाद सेकंड स्टेप आती है डी डिफरेंशिएशन, कितना समझा। लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल हैज द लॉस्ट कैपेसिटी टू डिवाइड, अभी क्या होगा, जो डिवाइड होने, मैंने पहले ही बताया, डिवीजन होंगे, ओके, एक टाइम पर डिवीजन स्टॉप हो जाएगा ना, हमेशा थोड़ी डिवाइड होगा, ठीक है। तो जो डिवीजन स्टॉप हो गया, लॉस्ट हो गया डिवीजन, उसके बाद जो स्टेप आएंगे उसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन, गॉट इट, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड, मे रिगेन द सेम एज पर द नीड एंड डिवाइड, मतलब कि ये डिफरेंशिएट करना है, डी डिफरेंशिएट करना है, ये प्लांट्स के पास खुद की एबिलिटी रहती है, खुद करते हैं, जैसा उनको लगे, जितना उनको चाहिए, ठीक है, तब करेंगे वो। तो द परमानेंट मैच्योर सेल अंडरगो द डी डिफरेंशिएशन, जो मैच्योर सेल वो डी डिफरेंशिएट होंगे, बिकम्स अ मेरिस्टेमेटिक, जो मेरिस्टेमेटिक है वो क्या होंगे, डी डिफरेंशिएट होंगे। ये मेरिस्टेमेटिक, इनका डिवीजन हो रहा है क्या, नहीं, तो जिनका डिवीजन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। कैम्बियन एंड कॉड कैम्बियन आर फॉर्म, ये एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है री डिफरेंशिएशन। अभी री डिफरेंशिएशन में क्या होगा, ये देखो, एक सेल से री डिफरेंशिएट होगी, फिर से डिवीजन, देखो क्या बोला है, सेल्स प्रोड्यूस बाय द डी डिफरेंशिएशन, ये स्टेप कब होंगी, डी डिफरेंशिएशन के बाद, प्रोड्यूस वंस अगेन द लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है, कैपेसिटी तो लॉस हो गई, ठीक है, डिवाइड करने की, एंड मैच्योर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, क्या करेंगे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दिस कॉल्ड द री डिफरेंशिएशन, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फिर से डिवाइड होगा, री डिफरेंशिएशन। एग्जांपल दिया जाइलम वगैरह, क्या तुमको समझ गया, पक्का समझ गया, ओके। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब क्या, ग्रोथ, किसकी, हम 7.7 फ्लो चार्ट देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, सीड जर्मिनेशन, किसी को पता है कि सीड जर्मिनेशन क्या होता है, हाँ, सीड जो है कोम आ जाना, ठीक है। फिर आता है मेरिस्टेम, मेरिस्टेम मतलब सेल, ठीक है, सेल डिवीजन होता, फिर सेल डिवीजन से क्या होता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, थोड़ी हल्की सी ग्रोथ होना, सेल इलॉन्गेशन, सेल का स्टर्जिंग हो जाना, इलॉन्गेशन, साइज बढ़ जाना, सेल मैच्योरेशन, सेल मैच्योर होना, फंक्शन करना स्टार्ट करना, मैच्योर सेल फंक्शन करेगा तो मैच्योर हो जाएगा सेल। नेक्स्ट है सेंसेशन, सेंसेशन मतलब पतझड़ आना, पतझड़ गिर जाता है, लीव्स गिर जाते हैं, फॉल डाउन हो जाता है, ठीक है, ये पता, हाँ, उसको बोलते हैं सेंसेशन। और डेड मतलब कई बार वो होने के बाद कभी फिर से प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, ऐसे प्लांट्स कभी पूरा गिर जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से ग्रोथ नहीं होती, तो डेड होते हैं।
कोई कोई प्लांट हो जाते हैं, फिर से रीडिफरेंशिएट होते हैं, फिर से पूरा फॉर्म होता है, पूरे रूट्स वगैरह, फिर से लीव्स, फिर से सब आएंगे हरियाली। ओके, इतना समझाऊं? यही उन्होंने इसमें लिखा है, देखो डेवलपमेंट में क्या बोला है। इट रेफर्स टू द ऑर्डर द प्रोग्रेसिव चेंजेस इन द शेप। प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है? अच्छे चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, इन अ शेप। शेप मतलब किसका? ओके, फ्रॉम द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस ऑकरिंग इन द सीक्वेंस फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड अप टू द, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि ये जर्मिनेशन सीड से लेके पूरी प्रोसीजर डेट तक ये ग्रोथ चलती जाएंगी, डेवलपमेंट क्या चलेगा? चलते जाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कुछ स्टेजेस तो हमने पहले ही देखे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब किसी को दिमाग लगाओ अपना, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिसिटी मतलब देखो क्या बोला है, पिक्चर देखो। फर्स्ट किसका है लीव्स किसका है? लीफ प्लांट का ही लीफ है, पर कौन सा पेड़ का है? कौन सा प्लांट का? वेरी गुड, ठीक है, धनिया बोल सकते हैं हम लोग। तो पहले वो वन ऐसा दिखता है जैसे पिक्चर में दिखा है, फिर सेकंड में थोड़ा ग्रोथ होने के बाद थोड़ा और, फिर तीसरा देखो, और फिर जब पानी में रहता, जो पानी में रहने वाले हैं वो ऐसे दिखते हैं, रहते ना, अलग अलग धनिया रहते हैं। जाओ बाजार में मिलते हैं फिर, ठीक है। अभी हम लोग प्लास्टिसिटी में देखेंगे क्या बोला। इट इज अ कैपेसिटी टू बी मोल्डेड, फॉर्म एंड मोल्डेड। ओके, तो मोल्ड हो जाते हैं ना, लीफ क्या हो जाते हैं? मोल्ड हो जाते हैं। मोल्ड होना मतलब कभी कभी लीफ ऐसा पूरा ये रहता है सपाट, कभी ऐसा कर्व हो जाता है, देखा है? मोल्ड हो जाना, समझा? कभी कभी येलो कलर हो जाता है, ठीक है। येलो अच्छा रहता है कलर कि नहीं रहता है? नहीं, क्यों? क्योंकि वाटर नहीं मिला ठीक से, या फिर न्यूट्रिशन में कमी हो रही है, बराबर है। तो वो मोल्ड होना, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ओके, एबिलिटी टू प्लांट्स टू फॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे बोला है इंटरनल स्टिमुलर फेजेस आ जाते हैं, स्टेजेस डिफरेंट फॉर्म कोरिएंडर, अभी हमने ये देखा धनिया का पत्ता, तो ये इसका एग्जाम्पल है। समझा तुमको प्लास्टिसिटी मतलब क्या? प्लास्टिसिटी मतलब वही कि लीफ जो है वो मोल्ड हो जाना, पहली लाइन है, अच्छे से याद रखना ये। और लीफ जो है वो वही येलो शेड के हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे? न्यूट्रिशन वाटर नहीं मिलेगा उनको, ठीक है, उसके कारण उसको हमने प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है ग्रोथ हार्मोन्स। कोई मुझे हार्मोन्स बताएगा क्या होता है? केमिकल रहता है, ओके। हार्मोन का काम क्या रहता है? फंक्शन ग्रोथ ऑफ हार्मोन। ग्रोथ किसकी होती है? हार्मोन की वजह से ग्रोथ होती है। और कुछ पता है हार्मोन्स के बारे में? एनीथिंग? नथिंग? मैच्योरिटी आ जाती है, ओके, वेरी गुड। तो सिमिलर फंक्शन है प्लांट्स में, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या होता है? जैसे तुमने बताया केमिकल होता है जो बॉडी में रहेगा या फिर प्लांट में रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा? प्लांट की ग्रोथ होगी, ओके, मैच्योरिटी आएंगी, ओके। तो वही बोला है। द टर्म ऑफ द हार्मोन स्टार्लिंग साइंटिस्ट थे। द इंटरनल फैक्टर्स उन्होंने बताया है कि ग्रोथ हार्मोन्स को ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में ग्रोथ रेगुलेटर्स क्वेश्चन आया तो। ग्रोथ प्रोमोट्स आर ऑक्सिन, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस लेसन में से 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से हमेशा बनता है, तो ध्यान दो। ग्रोथ प्रोमोट्स आर ऑक्सिन्स। देखो अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, बराबर? अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग फंक्शन करता है ना। तो वहाँ पे एक हार्मोन का नाम है ऑक्सिन, नेक्स्ट गिबरलिन, नेक्स्ट साइटोकिनिन, नेक्स्ट ओके एबी एबिसिक एसिड और इथिलीन। इतने 5 हार्मोन्स हैं, नाम अंडरलाइन करो और याद रखना है। ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या बताया मैंने अभी? ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब ग्रोथ हार्मोन, हाँ, ग्रोथ रेगुलेटर्स को क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक 139 पेज नंबर पे एक ये दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट, जो हम नहीं देखना चाहेंगे। बस उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बस यहाँ पे जो प्लांट है उसका जो टिप है वो कट कर दिया, ठीक है, और बोल दिया कि ये क्यों ऐसा झुक जाता है, ठीक है। तो वो हार्मोन की वजह से उन्होंने साइंटिस्ट ने लास्ट में लिखा है ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन है, वो हार्मोन की वजह से वो थोड़ा ऐसा झुक जाता है। तो उन्होंने बहुत पढ़ाई करने के बाद उनको इतना सब कुछ पता चला। देखो तुमको तो 1 सेकंड में पता चल गया, ठीक है। बेचारे ने अपना लाइफ खराब कर दी इतना सब पता करने के लिए, ठीक है। तो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से वो ऐसा थोड़ा बेंड रहता है, बस। मतलब देखो 3 साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट ने एक ही काम के पीछे अपना दिमाग लगाया और फिर चौथे साइंटिस्ट ने उसका रिजल्ट निकाला, ठीक है। इतनी कड़ी मेहनत है,
ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ए पॉइंट, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है? हार्मोन। ग्रोथ का हार्मोन है, हार्मोन का नाम, ग्रोथ हार्मोन का नाम है। ऑक्सिन का मतलब नहीं लिखा है, ऑक्सिन का नाम टू ग्रो। नाम में सब कुछ है कि नहीं? नाम में सब कुछ, मतलब क्या समझे ऑक्सिन मतलब? तो प्लांट में क्या करेंगे ये? हाँ ठीक है। देखो ये साइंटिस्ट बेंट, इन्होंने फाइंड आउट किया था, ये वही लास्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिजल्ट निकाला था। ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द यूरिन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ओके इन अ प्लांट इज ग्रोइंग टिप्स ग्रोइंग टिप्स मतलब ऊपर का जो टिप है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स। मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट ऑक्सिन इज देखो ऑक्सिन में क्या रहता है? ऑक्सिन मतलब केमिकल तुमने मुझे बताया बराबर। कौन सा केमिकल रहेगा? आयोडीन 3 एसिटिक एसिड RAA, अंडरलाइन करो। ये क्या रहेगा? केमिकल रहेगा। कौन से इसमें? ऑक्सिन की। तो इसका प्रीकर्सर इसको IA बोला है। ये फर्स्ट हार्मोन है प्लांट का जो ग्रोथ के लिए अच्छा है, जिससे प्लांट की क्या होती है? ग्रोथ होती है। ओके नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। व्हाट इज मीन बाय फिजियोलॉजिकल? फिजिकल मतलब हाँ ठीक है, तो चेंजेस आ जाना फिजिकली। प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द सेल इनलार्जमेंट। तो प्लांट में कैसे फिजिकल चेंजेस होंगे? सेल इनलार्जमेंट हो जाएगा। सेल इनलार्जमेंट मतलब हाँ। इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स ग्रोइंग द एपिकल बर्ड। ठीक है, एपिकल बर्ड पता है बर्ड क्या होता है? अच्छा मला वाटलं ते बर्ड नाही का, ईयर बर्ड आणखी खूप बर्ड येतात बरं। एपिकल डोमिनेंस, तो जो बर्ड रहता है उसको क्या बोला है? एपिकल डोमिनेंस। तो वो कड़ी में से जो फॉर्म होता है वो ये ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ही फॉर्म होता है। ओके ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में दिया है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है कुछ प्लांट में फ्लावरिंग होती है, फ्रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ऑक्सिन हार्मोन्स रोल अपना प्ले करता है। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट है गिबरलिन हार्मोन। ठीक है, अभी गिबरलिन ये नेक्स्ट हार्मोन का नाम है। देखो क्या बोला, इट इज अनदर ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन मतलब हाँ ग्रोथ होंगी इसकी वजह से प्लांट की। एपेडेंट रूट टिप में होता है ओके, डेवलपिंग द सीड की डेवलपमेंट के लिए नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट होता है मस्कुलर टिश्यू सेल की ग्रोथ होगा। ठीक है, ये इन्होंने एक फंगस बोला है, फंगस लगा था गिबरलिया फुजिकोरिया। ठीक है, ये फंगस लग गया था तो इसमें गिबरलिन हार्मोन ने अपना रोल प्ले किया था। याबुता और सुमुकी ये दोनों क्या थे? साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। अभी इनका फंगस लगा था प्लांट को, ये हुआ था कोई भी पेड़ समझो, यहाँ पे दिए क्या कोई पेड़, गन्ने के पेड़ समझो, गन्ने के खेत है समझा, उसमें क्या हुआ? फंगस लग गया। फंगस से क्या हो रही है? ग्रोथ ही हो रही है, ग्रोथ ही हो रही है, मतलब क्वालिटी नहीं है पर क्वांटिटी है, समझा। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, हमें क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए कि क्वांटिटी चाहिए? क्वालिटी चाहिए। तो उसने सोचा कि ठीक है इस वाले इससे ये हो क्यों रहा, तो उसने पता किया कि गिबरलिन हार्मोन की वजह से इनकी ग्रोथ बहुत लंबी हो ही रही है, खत्म ही नहीं हो रही है और क्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अच्छा ग्रोथ क्यों हो रही है? गिबरलिन हार्मोन की वजह से हो रही है। तो उन्होंने अपना दिमाग दिया ठीक है मैं क्वालिटी वाला अच्छा प्लांट निकालता हूँ और ये जो गिबरलिन हार्मोन है ये यूज़ करूँगा हाइट जिससे बड़े होंगे, समझा। ठीक, तो ये किसने फाइंड आउट किया? याबुता सुमुकी, दो साइंटिस्ट ने गॉट इट। ठीक है, फिर क्या बोला है? डोरमेंसी ऑफ अ बर्ड कैन बी ब्रोकन बाय गिबरलिन ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट में यूज़ किया गया था हार्मोन। कहाँ पे है ये? रूट से प्लांट की ग्रोथ करने में यूज होता है। नेक्स्ट साइटोकिनिन। साइटोकिनिन नेक्स्ट हार्मोन का नाम है। देखो अनदर ग्रोथ हार्मोन बोला है, प्रोमोट्स द सेल डिवीजन। किस लिए होता है ये हार्मोन? सेल डिवीजन में ओके यूज होता है। यहाँ पे टोबैको इस प्लांट में इन्होंने यूज किया था, यहाँ पे इसको ओके। लास्ट में देखो बनाना, फ्लावर्स, टोमेटो, इन सब में ये यूज किया है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं लास्ट में क्या दिखा है। बिसाइड सेल डिवीजन में क्या होता है? प्रोमोट सेल इनलार्जमेंट। क्या होगा? हाँ समझता है ना, सेल इनलार्जमेंट मतलब क्या? ओके। हाई साइटोकिनिन प्रोमोट्स द शूट वगैरह हो जाएगा। लो रेशियो साइटोकिनिन ऑक्सिन इंड्यूस द रूट ऑफ डेवलपमेंट, रूट डेवलपमेंट हो जाएगा, रूट शूट बर्ड्स सब कुछ ग्रोथ हो जाएगा ओके बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। नेक्स्ट आता है इथिलीन। ओके ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लो इनको, ये कई बार मैंने बोर्ड पे देखा है, आ सकता है तुम्हें भी, बोर्ड लिख लो। इट इज़ अ गैसियस ग्रोथ रेगुलेटर। ये ऐसा एक होता है जो गैस केमिकल गैसेस
गैसियस ग्रोथ रेगुलेटर मतलब गैस हार्मोन है, समझ रहे हो? ओके, सो तो नहीं रहे हो? नहीं ना? ओके, इट इज अ सिंपल गैस हाइड्रोकार्बन। देखो कौन सा होता है सिंपल गैस हाइड्रोकार्बन। वहाँ पे देखो फ्रूट राइपनिंग लिखा है, किसी को पता है क्या फ्रूट राइपनिंग क्या होता है? फ्रूट जो है पक जाना कंप्लीटली, फ्रूट राइपनिंग। तो ये पकने के लिए इथिलीन हार्मोन यूज होता है, समझा? हाँ, अलग अलग हार्मोन अलग अलग प्लांट के फंक्शन के लिए काम होते हैं। मतलब कि हाँ, ऐसा एक लाइन हम बोल सकते हैं कि हर एक हार्मोन ग्रोथ के लिए यूज होता है, पर ग्रोथ तो अलग अलग रहती है ना। कोई सेल ग्रोथ रहती, सेल डिवीजन रहती, सेल मैचुरेशन रहती, सेल राइपनिंग रहता, फ्रूट राइपनिंग रहता। तो पर्टिकुलर हार्मोन पर्टिकुलर फंक्शन करेगा, व्हाट इट। तो फ्रूट राइपनिंग के लिए इथिलीन यूज होता है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या होता है, लाइक बनाना, एप्पल, मैंगो, तुम्हारा फेवरेट, ठीक है। फ्लावरिंग के लिए, फ्लावरिंग वाली चीज के लिए ये इथिलीन हार्मोन यूज होता है। नेक्स्ट लास्ट अपना नाम एब्सिसिक एसिड, कौन सा? हाँ, ये क्या है नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, ग्रोथ होती है। केमिकल सब्सटेंस है कौन सा? एब्सिसिन, ये केमिकल सब्सटेंस रहता है। फिजियोलॉजिकल इसमें क्या बताया है, इट इज द सिंथेसाइज इन द लीव्स फ्रूट, ठीक है, सीड, फ्रूट, रूट्स, इन सब की क्या होती है ग्रोथ। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या बोला है, प्रोमोट्स द एब्सिसिंग ऑफ लीव्स एंड डोरमेंसी इन मेनी प्लांट, ठीक है। तो लीव्स में एब्सिसिंग प्रेजेंट रहता है, कंट्रोल द डोरमेंसी इन बर्ड्स, इनहिबिटिंग ग्रोथ के लिए यूज होता है, ठीक है। इट एक्सेलरेट द, देखो लास्ट में लिखा है सेंसेशंस ऑफ लीव्स। मैंने सेंसेशंस का मीनिंग बताया था फ्लो चार्ट में, किसी को याद है? डेट के पहले था हाँ, वो झड़ जाना, तो वो झड़ने के बाद फिर से आना चाहिए ना बाहर, ठीक है। तो ये हार्मोन एब्सिसिक एसिड काम करता है, समझा? ओके, तो तुम्हें क्या लगता है वो जो झड़ता है पूरा प्लांट, वो अच्छा रहता है कि बुरा रहता है? बुरा रहता है, क्यों? हाँ, वो देखा जाए तो अच्छा रहता है, क्यों इसलिए अच्छा रहता है? क्योंकि जब भी कोई प्लांट्स के फॉल डाउन हो जाते हैं सारे लीफ, क्यों होते हैं? क्योंकि तो वाटर या फिर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है प्रॉपर, बराबर है, या फिर उनका जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है ना फ्रूट्स देना, वो खत्म हो जाता है, बराबर। तो अभी क्या होगा, अगर वो पूरा उनका पतझड़ नहीं झड़ जाएगा तो क्या होगा उससे, वो पूरा कंप्लीटली डेथ हो जाएगा प्लांट, ठीक है। पर वो जो गिर जाएंगे सारे पतझड़, बोलो सब लोग गिर जाएंगे और फिर से वो एब्सिसिक एसिड से क्या होगा, फिर से वो फॉर्म करेगा, फिर से सब बाहर आना। ऐसे लेमन ट्रीज, मैंगो, इनमें होता है, देखा है तुमने, बड़े बड़े ट्रीज में होता है। तो ये एब्सिसिक एसिड सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है उस टाइम पे। तो पतझड़ जाना, फिर से बाहर आना, फिर से वो पहले सामान फॉर्म होगा, फिर से उसमें स्ट्रेंथ आएंगी, फिर से सारी चीज़ें फिर से फॉर्म होंगी, तो वो अच्छा रहता है। डेट होने से तो अच्छा है ना, प्लांट कंप्लीट डेट हो जाएगा, सूख मतलब पूरा सूख जाएगा, पतझड़ गिरेंगे नहीं तो पूरा सूख जाएगा और वहीं पे मर जाएगा। तो इससे अच्छा है पूरा गिर जाओ, फिर से वो एब्सिसिक एसिड से फिर से वो रिस्टार्ट करे, व्हाट इट, ठीक है। लास्ट में देखो क्या बोला, इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोला है, क्योंकि जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन ही है, पतझड़ गिर जाना मतलब स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस में काम आएगा ना उनके, प्लांट का भी स्ट्रेस होता है, आज पता चलेगा तुमको। देखो इनहिबिट द फ्लावरिंग इन अ लॉन्ग डे प्लांट, स्टिमुलेट द फ्लावरिंग इन अ शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। तो प्लांट के फ्लावरिंग में वगैरह ये यूज होता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है, सो आई विल आस्क सम क्वेश्चंस इंडिविजुअल, ओके। So Nidhi, tell me about 5 types of hormones. Names of the 5 types of hormones. You can read it. Exulins, gibberellin, cytolins, ethylene, abscisic acid. Okay. Now tell me the particular use of each hormone. At least one sentence. What is the use of abscisic acid? Abscisic acid means auxin. Auxin hormone. It is a chemical, okay. What is the use of auxin hormone? Growth of plants. Growth of plant. Okay. And what is the use of gibberellin?
गिबरलिन क्या करता है? developing the roots and ओके. promoting साइटोकिनिन. division होता है ओके. इथिलीन. gaseous hormone ओके. एब्सिसिक. जो ग्रोथ के लिए यूज होता कौन सी ग्रोथ? है प्लांट की. अभी जस्ट बताया था पतझड़ गिर जाना तब. ओके. आर्यन टेल मी अबाउट डिफरेंशिएशन में क्या होता था? डिवीजन हो जाना और डिफरेंशिएशन डिवीजन हो जाना व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक सेल? मेरिस्टेमेटिक एक से दो फॉर्म हो जाना सेल और फिर जो एक सेल बचता हाँ. है वो प्लांट में होता है Okay, very good. Mayur, tell me about 7.7 flowchart of development of plant. Page number 138. डेवलपमेंट प्लान मतलब वो सीढ़ी ना उसकी ग्रोथ नाम होना फिर वो सेल है फॉर्म होना सेल डिवीजन होना उसके बाद में फिर क्लासमेट ग्रोथ मीन्स हल्की सी ग्रोथ ना हो उसके लिए प्लांट की जो लीव हो रही है उनकी ग्रोथ ना तो नेचर ऑफ जनम से इसके एक भी हो जाता Okay. So next question, Mayuri. What is the difference between the exponential growth and linear growth curve? exponential growth मतलब continuous constant और धीरे. Okay, very good. Phases of growth. Khushbu. There are 3 phases. Which? arithmetic growth, geometric growth. There are 3 types of growth: arithmetic growth, geometric growth, and relative growth. Okay. What do you understand in these phases of growth? Arithmetic growth, in arithmetic growth, plant is growing stepwise, and geometric growth not growing stepwise. Ketki, tell me about phases of growth. There are 3 types of phases of growth: cell division, cell enlargement, and cell maturation. What do you understand in this? In first, पहले इसमें सेल डिवीजन होता है सेल का. सेकेंड इसमें सेल इनलार्जमेंट होता है मतलब वो हाँ. बढ़ता है. और फिर थर्ड इसमें सेल मैच्योर होता है. Okay, good. So, tell me about what is the condition for growth in plants, Mayuri? प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन लगेंगी कहना? मंजीरी. वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन. Okay. Okay, good. So now I am giving homework to all. Okay. So 134 page number. Phases of growth. There are 3 steps. Okay. At least 2 sentences you have to do for each step. Okay. Next, condition for growth. Just 2 sentences. Okay. What you need? Condition for growth. Next, page number 136. Arithmetic growth and geometric growth. Underline at least 2 sentences for arithmetic and geometric with graph. With this picture 7.3 growth rate. Okay, arithmetic geometry this 7.3 growth rate. Next, differential 1 to ABC. Okay, this flow chart you have to explain this flow chart. Then about harmonics.
Okay, at least 3 points for each hormone. Okay, for use, for acid, which acid, for which function, 3. You have to do, and I will check tomorrow your homework. Okay, any doubt, anyone? No? Okay.